بجٹ تجاویز کے لیے پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار پری بجٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایکڈیمیا، صنعت و تجارت کے نمائندگان اور دیگر تمام سٹیک ہولڈر شامل تھے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2026-27 کے لیے مجموعی بجٹ کا حجم 5,903 ارب 46 کروڑ روپے تجویز کیا جا رہا ہے، جو کہ رواں مالی سال کے مقابلے میں 10.7% زیادہ ہے۔ جاری اخراجات کا تخمینہ 1962 ارب 93 کروڑ روپے، جو کہ رواں مالی سال کے مقابلے میں 3.1% کم ہے، جس کی اہم وجہ حکومت کی کفایت شاری ہے۔ اگلے مالی سال میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے، جس سے تنخواہوں کا خرچہ صرف 1.4% بڑھ کر 638 ارب 93 کروڑ ہوگا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی امن معاہدہ پاکستان کی میزبانی میں جنیوا میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو روانہ ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ایران امریکہ معاہدے سے پاکستان کے وقار میں مزید اضافہ ہوا، پاکستان کو بڑی سفارتی کامیابی حاصل ہوئی، مارکہ حق میں بھی پاکستان نے شاندار فتح حاصل کی۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل اور افواج پاکستان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ ایران اور لبنان میں جنگوں کا خاتمہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ لبنان میں کسی بھی قسم کی قبضہ گیری کو معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا تہران میں سفارتکاروں سے خطاب، کہا امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا نیا دور جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگا۔ پہلے مرحلے میں آبنہ ہرمز ناکہ بندی اور ایران پر حملے سے متعلق بات ہوگی، دوسرے مرحلے میں جوہری ہتھیار اور پابندیاں ہٹانے سے متعلق بات کی جائے گی۔ معاہدے پر جمعے سے باضابطہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ ایران سے معاہدے کے بعد امریکی ناکہ بندی ختم، ایرانی تیل بردار 5 جہاز آبنہ ہرمز سے گزر گئے۔ ایران کے ساتھ امن معاہدہ انتہائی شاندار ہے، نائب صدر جے ڈی وینس دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے، میں بھی شریک ہو سکتا ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے کی امید ہے، معاہدے کی تفصیلات بعد میں جاری کریں گے۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا امریکہ کی ایران کو $300 ملین دینے کی خبر جھوٹی خبر ہے۔ One of the core parts of the agreement is that the IAEA and the United States are going to help Iran destroy the highly enriched stockpile, and that's something that's spelled out very clearly in the MOU. ایران سے معاہدے کے تحت جوہری معائنہ کاروں کو ایران میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ IAEA اور امریکہ افزودہ یورینیم ختم کرنے میں ایران کی مدد کریں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا NBC کو انٹرویو، کہا مفاہمتی یادداشت میں لکھا ہے حتمی معاہدے کے لیے ہم 60 روز تک مذاکرات کریں گے، اس دوران بغیر کسی ٹول کے آبنہ ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب جمعے کو ہوگی، اس سے پہلے صدر ٹرمپ ابتدائی معاہدے کی دستاویز جاری کر سکتے ہیں۔ حزب اللہ کا امریکہ اور ایران میں معاہدے کا خیر مقدم۔ رائٹرز کے مطابق حزب اللہ کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ معاہدے کے بعد تنظیم نے کوئی کارروائی نہیں کی، اگر اسرائیل جنگ بندی پر عمل کرے گا تو ہم بھی کریں گے۔ لبنان میں اسرائیل کی آزادانہ نقل و حرکت کو مسترد کرتے ہیں۔ حماس نے بھی امریکہ اور ایران میں معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ حماس کے سینئر رہنما ڈاکٹر باسم نعیم نے ایکس پر لکھا، ایران کو اس تاریخی کامیابی پر مبارکباد جو نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے اہم ہے، لیکن اصل کامیابی اس وقت ہوگی جب قبضہ ختم ہوگا اور فلسطین آزاد ہوگا۔
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा का दौरा, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात, ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुतालिक हुकूमती इक़दामात पर एतमाद में लिया। कहा वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। खत्ते में कशीदगी के खात्मे का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। हाफिज नईमुर रहमान ने ईरान अमरीका मफाहमत पर पाकिस्तान के मुखलसाना किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान के तारीखी किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल 2.38% सस्ता, कीमत फी बैरल $81.18 हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 2.6% कमी से फी बैरल $78.64 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 5% कमी हुई थी। बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात, आला हुकूमती शख्सियत का पीपुल्स पार्टी से राब्ता। ज़राए का कहना है पीपुल्स पार्टी ने हुकूमती शख्सियत को बजट से मुताल्लिक गलत बयानी से आगाह किया, मुआक़फ़ अपनाया। हुकूमत ने पीपुल्स पार्टी से किए वादे पूरे नहीं किए। हुकूमती शख्सियत ने तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाने, वादे पूरे करने और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। पीपुल्स पार्टी हुकूमती जवाब के मुताबिक बजट से मुताल्लिक हिकमत अमली तय करेगी। पीपुल्स पार्टी और हुकूमत की बजट टीमों में मुलाकात का इम्कान। खित्ते में अमन के लिए पेशरफ्त खुश आइंद है। पाकिस्तान को दाखिली सियासी कशीदगी कम करने पर भी तवज्जो देनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत अपोजिशन को सियासी स्पेस दे और हालात को नॉर्मल करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा कौमी मफाद को तरजीह दी है। पाकिस्तान पहले और सियासत बाद में, यही हमारा मौक़िफ़ है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने दुनिया को अमन की राह पर डाल दिया। आज हर मुल्क क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत के किरदार को सराह रहा है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। पीपुल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा सियासी और अस्करी क़यादत ने वो काम किया जो सदियों याद रखा जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस फिल्म के हीरो हैं। पाकिस्तान नई पहचान के साथ उभर रहा है। विफाकी वजीर मुस्तफा कमाल ने कहा ईरान अमरीका मुआहदे में फील्ड मार्शल का बहुत बड़ा किरदार है। हमने तीसरी जंगे अजीम रुकवाई है, हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली। बलूचिस्तान में अमन के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा हल निकाला जाए जो बलूचिस्तान में रहने वालों के लिए काबिल कबूल हो। दहशत गर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो या बलूचिस्तान में, उसका मरकज अफगानिस्तान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान क़यादत से काबुल, तुर्की और कतर में भी मुलाकातें हुई जो नतीजा खेज साबित न हुई। हम सब करने को तैयार थे लेकिन अफगान क़यादत जमानत देने को तैयार नहीं। हमने 40 साल तक अफगानिस्तान से आने वालों की मेहमान नवाजी की। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे 4000 जवान शहीद हुए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान शमसी तवानाई मंसूबे पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के 100 मेगावाट सोलर मंसूबे के अखराजात उठाएगी। मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज और इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म की मंसूबे के तमाम मराहिल में शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। इजलास में एहसन इकबाल, आहत चीमा, अवैस लगारी और अमीर मकाम समेत मुताल्लिका अफसरान शरीक हुए। एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर येलो लाइन ज़मीर अब्बासी की हिरासत के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने कहा दरखास्त की समाअत हुई तो दरखास्त गुजार के वकील कोई वजह बताए बगैर चले गए। वकील ने ना दुरुस्त तरीके से वकालतनामा जमा कराया और ना ही कोई दस्तावेज जमा कराई। वकील को दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक अदालत को मुतमईन करना होता है। ऐसी सूरत हाल में अदालत इस दरखास्त पर कोई रिलीफ फराहम नहीं कर सकती। विफाकी तहकीकाती इदारों की मदद से कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के केस में पेशरफ। पिंकी के मोबाइल फोन डेटा की फॉरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को मौसूल। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक अनमोल के मोबाइल फोन से 100 GB से ज्यादा डेटा रिकवर कर लिया गया।
75,000 तस्वीर भी रिकवर की गई। डेटा में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, बैंक स्लिप्स के सैकड़ों स्क्रीनशॉट्स शामिल। 42,000 कॉल लॉग भी पकड़ी गई। अनमोल पिंकी ने एक ही मोबाइल फोन में 2 व्हाट्सएप खोल रखे थे। अटक के सरहदी इलाके के करीब CTD और दहशतगर्दों में मुकाबला, 5 दहशतगर्द हलाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितना खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस और CTD नुमाया कामयाबियां हासिल कर रही हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम को CTD के जवानों पर फख्र है। वजीर आला सिंध की जेर सदारत वसाइल में इजाफे और महसूलात से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह की महसूलात को बढ़ाने और टैक्स वसूली के निजाम को मजीद मुअस्सर बनाने की हिदायत। कहा, महसूलात के अहदाफ की हुसूल के लिए मुतालिका इदारे हिकमत अमली अपनाएं। उन्होंने टैक्स नेट में तौसीर, शफाफियत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। इस साल डबल डेकर और EV बसों की बड़ी तादाद कराची पहुंच जाएगी। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट निजाम जदीद तरीन बनाने के विजन पर काम कर रही है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, EV बसें माहौल दोस्त होने के साथ कम लागत और आरामदेह सफर फराहम करेंगी। सिंध हुकूमत के मंसूबे कराची के मुस्तकबिल की समत मुतय्यन कर रहे हैं। ये जदीद कराची की जानिब सफर की नई इब्तिदा है। इस्लामी साल के आगाज पर गिलाफ-ए काबा किस्वा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। गिलाफ-ए काबा को 11 माह की मुसलसल मेहनत से तैयार किया गया, जिसकी तैयारी में 1000 किलोग्राम रेशम, 120 किलोग्राम सोने और 100 किलोग्राम चांदी के धागे इस्तेमाल किए गए। खाना काबा का गिलाफ हर साल यकुम मुहर्रम उल हराम को तब्दील किया जाता है। गिलाफ-ए काबा तब्दीली की तकरीब नमाज इशा के बाद शुरू होती है, जो 5 घंटे जारी रहती है।